welcome to Legacy IS Academy. हमारे आज के इस वीडियो में we are going to study about मीतीज, but this will be a very different issue. आज तक हम लोगों ने मणिपुर से रिलेटेड जो भी बातें डिस्कस की हैं, that has been largely related to what was the primary reason for the disturbance taking place between मीतीज and कुकीज. क्या इशू था, क्या किस जगह पे ये लोग रहते हैं, और फॉर दैट मैटर 2023 की जो क्राइसिस स्टार्ट हुई, द मणिपुर क्राइसिस, वो किस प्राइमरी रीजन पर, आई वुड कॉल इट, कि what was the last nail on the coffin that created this large scale violence that has displaced approximately 60,000 people in the state of Manipur. अभी तक भी we have not been able to bring back the normal life to the state of Manipur. तो आज के हमारे वीडियो में we will not be discussing about any of these issues, but a very different issue about an examination. Actually, आसाम पब्लिक सर्विस कमीशन की एक एग्जामिनेशन हुई थी ऑफ इट्स एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ऑफिसर, और उस एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था, उस क्वेश्चन को ऑब्जेक्ट किया है मीती हेरिटेज सोसाइटी ने. सो टॉकिंग अबाउट द न्यूज आइटम दैट talking about the news item that there is a row over no mention of Kuki militants in the answer choices on Manipur crisis, Assam panel points at the question setters. So what is exactly the controversy? The controversy is जो क्वेश्चन पूछा गया था, as has been stated, मणिपुर हेरिटेज सोसाइटी ने एक लेटर लिखा टू द आसाम पब्लिक सर्विस कमीशन कि आपके सर्विस कमीशन ने एक एग्जाम कंडक्ट किया था फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ऑफिसर, और उसके क्वेश्चन नंबर 95 में दे हैव आस्क्ड अबाउट मणिपुर क्राइसिस, व्हाट वाज द प्राइमरी कॉज फॉर द मणिपुर क्राइसिस. ठीक है, बट उसमें जो ऑप्शंस दिए गए थे, उसमें एक ऑप्शन में they were talking about कि which of the following organizations were responsible for कि changing the rights issues और rights issue को uphold नहीं कर सका, ऐसे कौन कौन से militant organization थे. और ये जो militant organizations mentioned थे, उसमें मीतीज के बहुत सारे militant organization का नाम mention था, but there was no mention of Kuki militant organization, and that is what has been brought to news by Meeti Heritage Society. One of the question in the paper selectively maligns the Meeti community by portraying Meeti groups as the perpetrators of right abuse. Rights के abuse के लिए primary factor responsible जो था, वो था Meetis का militants, ऐसा उस question portray कर रहा है. This is what has been portrayed by that question, as has been claimed by Meeti Heritage Society. So it has ignored the grave atrocities, जो भी atrocities या killings या displacements suffered by Meetis at the hands of Chin and Kuki militants, इसका उस question में कोई भी mention नहीं है, and that is what this controversy is talking about. Now, MHS, that is Meeti Heritage Society का क्या request है कि आसाम पब्लिक सर्विस कमीशन, जब आप इस पेपर को इवैल्यूएट कर रहे होगे, तो इस क्वेश्चन को यू नीड टू डिक्लेयर इट एज नल एंड वॉइड, and when you are evaluating, you are not supposed to use this question for evaluation purpose. This is the request that is coming from Meeti Heritage Society. But what is the response that is coming from Assam Public Service Commission? क्योंकि APSC ही वो एग्जाम कंडक्ट करा रही थी फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ऑफिसर. सो APSC का कहना है कि इसमें हमारी गलती एक्चुअली नहीं है, because what we do is we select a lot many number of questions, और वो क्वेश्चंस हम लोग सर्कुलेट कर देते हैं टू द क्वेश्चन सेटर्स. अब क्वेश्चन सेटर्स कौन होते हैं, क्योंकि गलती तो इस जगह पे हुई है एज पर मीती हेरिटेज सोसाइटी. सो क्वेश्चन सेटर्स आर द पीपल फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, एमिनेंट पीपल फ्रॉम रिपीटेड यूनिवर्सिटीज ऑफ द कंट्री. ये लोग वो होते हैं जो जीएस के क्वेश्चंस, जनरलिस्टिक क्वेश्चंस को सेट किया करते हैं. ठीक है, सो क्वेश्चन सेटर्स एक बार अगर क्वेश्चन सेट कर देते हैं, तब इन्हें मॉडरेटर्स के पास भेजा जाता है. मॉडरेटर्स का काम क्या होगा कि इजी, मीडियम, डिफिकल्ट हर तरीके के क्वेश्चंस को पूछा जा सके. ठीक है, सच दैट क्वेश्चन पेपर इज नीदर कंप्लीटली इजी नॉर कंप्लीटली डिफिकल्ट. एक बार ये मॉडरेटर से पास हो जाता है तो दिस गेट्स लॉग्ड. तो APSC itself is not able to see those questions. APSC का कहना है कि जब ये क्वेश्चन पेपर पब्लिश हुआ, we could not even verify this, क्योंकि ये मॉडरेटर्स के द्वारा सेट किया जाता है, और वंस मॉडरेटर्स इसे मॉडरेट कर देते हैं तो क्वेश्चन गेट्स लॉग्ड. सो इसमें APSC का कोई रोल नहीं है इन टर्म्स ऑफ सेटिंग ऑफ द क्वेश्चंस, तो इट इज मोर और लेस द क्वेश्चन सेटर्स. ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू मीती हेरिटेज सोसाइटी. मीती हेरिटेज सोसाइटी एक्चुअली क्या है?
दिस इज अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में भी इट्स प्राइमरी इंटेंशन वाज, ये 2023 में बना था व्हेन द वायलेंस इन मीती वाज राइजिंग वेरी वेरी फास्ट। तब ये ऑर्गेनाइजेशन बना था क्योंकि इनका प्राइमरी इंटेंशन था कम्युनल हार्मनी को इस्टेब्लिश करना और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए सीड्स बोना। बेसिकली they were intending that we will promote socio-economic development by two principal methods. पहला, fighting the false information, क्योंकि in the age of social media we all very well know कि false information becomes a proliferating point, or the intention जो कि एक बहुत छोटी सी बात होगी उसे proliferate करके बड़ा कर देना in the age of social media it is very easy. So इस तरीके के false information को हम लोग curb down करेंगे and publicize the peaceful development. कहीं भी अगर मीतीज और कुकीज एक साथ रह रहे peacefully, we will try and promote this kind of news such that there are hopes कि मणिपुर can be restored back as early as possible. ठीक है, मीती हेरिटेज सोसाइटी इस प्राइमरी पर्पस से बनाई गई थी, बट अगर देखा जाए कि 2023 में बनने के बाद से मीती हेरिटेज सोसाइटी का इस एरिया में क्या क्या डेवलपमेंट रहा है, सो वन थिंग दैट एमएचएस हैज अर्लियर ऑब्जेक्टेड, 2023 के बाद से एमएचएस हैज आल्सो ऑब्जेक्टेड कि मीती का एक पिलग्रिमेज साइट है थैंगजिंग चिंग हिल्स। ठीक है, थैंगजिंग चिंग हिल्स जो है दिस इज अ पिलग्रिमेज साइट। नाउ व्हाट इज दिस हिल? इस हिल पे जो गॉड बैठे हैं एज पर मीतीज, इनका कहना है कि दिस गॉड इज द गॉड ऑफ ऑल हिल्स। अगर हम लोग इनकी पूजा करते हैं देन द हिल्स आर गोइंग टू प्रोटेक्ट अस। तो जितने भी हिल्स हैं वो हमारे सेफ्टी के लिए इंश्योर करेंगे इफ वी आर रेगुलरली विजिटिंग दिस पिलग्रिमेज साइट। ठीक है, बट एमएचएस का कहना है कि because of the involvement of cookies, this region has largely been dominated by cookies because it is a hilly area. तो क्योंकि वहां पे domination by habitat itself, the population of cookies are more, तो cookies का dominance इस region में ज्यादा रहा है, और वो they have obstructed, they have objected to this pilgrimage site, और इस pilgrimage site पे मीतीज का movement को object किए हैं, restrict किए हैं। एमएचएस इससे पहले भी कोर्ट्स जा चुकी है फॉर दिस रीजन कि मीतीज को उनके पिलग्रिमेज साइट तक जाने दिया जाए। ठीक है, सो ये एमएचएस का प्रीवियस डेवलपमेंट रहा है। अदर देन दिस दे हैव आल्सो बीन रिस्पांसिबल लार्जली फॉर जिस तरीके के पीसफुल इंफॉर्मेशन इस्टेब्लिशिंग बिटवीन मीतीज एंड कुकीज, इस तरीके के पीसफुल न्यूज को भी पब्लिसाइज करना मीती हेरिटेज सोसाइटी का काम रहा है। ठीक है, so that was all with respect to the controversy in the question that was asked with respect to agricultural development officer in APPSC in Assam Public Service Commission exam. Thank you so much and all the very best.